Hi students, welcome back to my channel Bright Aspirants. Hope you all are doing good. My name is Jyoti Saini and today we are going to continue our MCQ series of marketing unit. So just let's start. Okay, the first question is rural consumers कैसे होते हैं आपके? They are price sensitives. Profiling the rural market is a part of dash stage of rural marketing strategy. आपकी जो रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर प्रोफाइलिंग आपकी कौन सी स्टेज होती है, आपकी किस स्टेज के अंदर आती है? दैट इज योर फर्स्ट स्टेज, दैट इज प्लानिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ दैट स्टेज ऑफ रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. देखो, जो आपकी प्रोफाइलिंग और मार्केटिंग रिसर्च बोथ आर द फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, दैट इज प्लानिंग. Okay, 154 question. The pricing means assigning a low price tag for a product and providing the benefit of low cost mass production to the customers. तो this is your value pricing, जिसमें आप क्या करते हो, अपने कस्टमर्स को लो प्राइस में अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराते हो और आपके जिसमें कॉस्ट बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ. Question number 155. Price points of rupees 1, 2, 3, 4, etc. are used for FMCG brands is known as dash pricing. तो ये आपकी कौन सी प्राइसिंग होती है? This is your power price points. Next question. Introducing a product at low price and increasing the price once the brand succeed is known as your dash pricing. This is your penetration pricing. इसके अंदर आप क्या करते हो? When जब आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो मार्केट के अंदर, तो आप क्या करते हो, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे और धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में यहाँ पर कंज्यूमर्स को पसंद आ रहा है, देन यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट. सो दिस इज योर पेनिट्रेशन प्राइसिंग. Question number 157. Smaller companies tying up with the leading companies to distribute through its network is known as dash distribution. So this is your syndicated distribution. Question number 158. Dash distribution system can be used to penetrate the rural marketing. Rural market को यहाँ पर कौन सा distribution system penetrate करता है? That is your satellite distribution. Okay, the services are, देखो services आपके intangible, because intangible means here you can't touch the services, you can only feel the services. आप उसको touch नहीं कर सकते, you can see or touch. perishable nature दोनों होता है, तो answer is both A and B. Next question. Dash refers to the way a service provider and his employees anticipate what the consumer wants and provide them before they ask for services to make them delighted and surprised. So ये क्या होता है आपका प्रोएक्टिवनेस, जिसके अंदर आप अपने कस्टमर्स को इतने अच्छे से जानते हो कि उनके बताए बिना ही कि what they want before they ask for the services, you make those things available to make them feel delighted and surprised. Question number 161. Which of the following is not a characteristics of services marketing? यहाँ पर services marketing में से इसे कौन सा यहाँ पर characteristics नहीं है? So the answer is separability. Question number 162. Medical treatment with Ayurvedic message is an example of. So जो medical treatment आपके Ayurvedic message के साथ आपका example किस चीज़ का है? आपका pure services का. Question number 163. Which of the following is not a services? इसमें से आपकी कौन सा यहाँ पर सर्विस नहीं है या फिर सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है? So देखो, हॉस्पिटल, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, दिस थ्री आर ओनली द वन हु आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. ये तीनों ही आपको यहाँ पर क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइडर करते हैं. सो द आंसर, करेक्ट आंसर शुड बी योर नन ऑफ दीज. Which of the following is not an element of service marketing mix? यहाँ पर आपके सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स का एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा नहीं है, एलिमेंट कौन सा नहीं है? आपका पैकेजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वॉज फर्स्ट यूज बाय यूजीन जे कैली. जे कैली ने यहाँ पर सबसे पहले कौन से टर्म को यूज किया था? सो दैट इज योर मेगा मार्केटिंग, सॉरी इट्स योर मेटा मार्केटिंग. मेगा मार्केटिंग दिया था आपके फिलिप कोटलर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन 166. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मार्केट एग्रीगेशन. यहाँ पर मार्केट एग्रीगेशन यहाँ पर किस चीज को बोला जाता है आपको? सो द करेक्ट आंसर इज योर मास मार्केटिंग. देखो, एग्रीगेट मतलब सम ऑफ द होल, तो यहाँ पर जो मास होता है इससे आप रिलेट कर सकते हो यहाँ पर. तो मार्केट एग्रीगेशन कुड बी रिलेट टू द मास मार्केटिंग. क्वेश्चन नंबर 167.
विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स टारगेटिंग बल्क परचेजर्स एंड ऑफरिंग देम स्पेशल बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस। यहाँ पर आप क्या करते हो, अपने टारगेट करते हो बल्क परचेजर्स को और उनको स्पेशल बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस यहाँ पर ऑफर कराते हो, तो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमरजेंस ऑफ रिलेशनशिप मार्केट। यहाँ पर रिलेशनशिप मार्केट के एमरजेंस में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर नहीं होता। तो देखो, ग्रोथ ऑफ सर्विस इकोनॉमी बिल्कुल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है आपके रिलेशनशिप मार्केटिंग में। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी आपके, ये भी होगा। अगर आपके कस्टमर अवेयरनेस और एजुकेशन यहाँ पर इंक्रीज होगी तो ये भी होगा। चेंजिंग द रोल ऑफ वुमन, देखो ये किसी भी तरीके से आपके रिलेशनशिप मार्केट के एमरजेंस के रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या रहेगा आपका, डी ऑप्शन। Next question, dash is a strategy of entering into a unreceptive or blocked country and practice marketing by using economic, psychological, political, public relations skills etc. in the country. तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, so the correct answer is your mega marketing. Dash is also called ambush marketing. तो ambush market कौन सी होती है आपकी, event market is also called your ambush marketing. The basic objective behind the dash is to add value to the product significantly for winning the customer loyalty. तो यहाँ पर कस्टमर लॉयल्टी को विन करने के लिए जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, वहाँ पर कौन सी मार्केटिंग होती है, वो आपकी मॉफ मार्केटिंग। डैश इज ऑल्सो नोन एज बज मार्केटिंग। तो जो आपकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होती है, ये क्या होता है, कस्टमर्स के अंदर एक बज क्रिएट कर देना। वो कैसे होता है, जब आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो एंड यू रेफर दिस दैट प्रोडक्ट टू अनदर पर्सन, सो ये क्या होता है, मार्केट के अंदर एक सेंसेशन, एक बज क्रिएट कर देता है आपके उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। सो ये किस तरीके से पॉसिबल होता है, बेसिकली आपका वर्ड ऑफ माउथ या फिर माउथ टू माउथ मार्केटिंग के थ्रू। इन जापान डैश मार्केटिंग इज नोन एज कुची कोमी। तो यहाँ पर जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है, इसी को जापान के अंदर क्या बोला जाता है, कुची कोमी। द टर्म डैश मार्केटिंग वॉज कॉइन्ड बाय स्टीवन जोविस्टन इन 1997। तो ये आपकी कौन सी टर्म थी जो आपकी यहाँ पर 1997 में इसने दी थी। सो द करेक्ट आंसर इज योर वायरल मार्केटिंग। अंडर डैश मार्केटिंग एवरी कस्टमर इट इज ट्रीटेड एज यूनिक। तो यहाँ पर हर एक कस्टमर को कौन सी मार्केटिंग के अंदर अलग ट्रीट यानी कि यूनिक ट्रीट किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज 1 to 1, क्योंकि आपके जितने अलग अलग कस्टमर्स होंगे उतने ही कस्टमर्स को आपके अलग तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एयरलाइन वर्किंग विद अ टूर ऑपरेटर और अ होटल ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर डैश मार्केटिंग। तो यहाँ पर क्या देखो, एयरलाइन किसके साथ काम कर रही है, आपके होटल के साथ। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस में, पार्टनरशिप। तो द करेक्ट आंसर इज योर पार्टनरशिप। मार्केटिंग टू बेबीज इन द वॉर्म इज डैश मार्केटिंग। मार्केट क्या कहता है, अगर वॉर्म के जो आपके बेबीज है वो आपकी वॉर्म के अंदर है, आपकी बेबी के, तो यहाँ पर वो मार्केटिंग क्या रहेगी आपकी, गैलीमेटियास। सो द करेक्ट आंसर इज योर गैलीमेटियास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 178 क्वेश्चन, डैश इज द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट दैट आर रिगार्डेड टू बी सेफ फॉर द इन्वायरमेंट। कौन सी आपके मार्केटिंग होती है जो आपके इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पर सेफ रहती है। तो दैट इज योर करेक्ट आंसर इज योर ग्रीन मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 179, अ प्रोडक्ट विद द डैश इज अ ग्रीन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट आप क्या बोलोगे, यहाँ पर ग्रीन प्रोडक्ट होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आपका इको मार्क का साइन होता है, इसका मतलब दैट प्रोडक्ट इज योर ग्रीन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, डैश इज मार्केटिंग ऑफ अ सोशल मैसेज विद अ व्यू टू चेंज बिहेवियर ऑफ पीपल्स हैबिट। तो ये कौन सी होती है आपकी सोशल मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 181, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल मार्केटिंग मिक्स। यहाँ पर सोशल मार्केटिंग मिक्स में कौन सा एलिमेंट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज पीपल। आंसर क्वेश्चन नंबर 182, यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इज एवरीडे बिजनेस एक्टिविटीज। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करना अपनी डेली उसमें बिजनेस एक्टिविटीज में। सो ये क्या होता है आपका, ई कॉमर्स। बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट इज नोन एज, आपका ये भी क्या होगा, आपका ई कॉमर्स, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, यू कैन बाय और सेल ओवर द इंटरनेट। द मार्केटिंग साइड ऑफ ई कॉमर्स इज नोन एज, मार्केटिंग साइड जो होती है आपकी ई कॉमर्स की, वो क्या होती है आपकी, ई मार्केटिंग। SEM stand for your search engine marketing. So the full form of SEM is your search engine marketing. Dash marketing refers to achieving marketing objectives through applying digital technology such as website. तो ये कौन सी डिजिटल अप्लाइंग, यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी आएगी, तो ये मार्केटिंग भी कौन सी होगी आपकी, डिजिटल मार्केटिंग। Question number 187, word of mouth marketing through electronic channels like email, internet is known as your, तो ये कौन सी मार्केटिंग होगी, वायरल मार्केटिंग होगी आपकी, जिससे क्या होगा, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग।
आप यहाँ पे कह रहे हो कोई भी चीज़ जब वायरल हो जाती है तो क्या करते हैं लोग उसके बारे में बताना स्टार्ट कर जाते हैं। तो ये कौन सी मार्केटिंग होगी, जो वायरल हो जाती है चीज़ आपकी, वही आपकी क्या होती है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। Question number 188. DES can be defined as convergence of branding, information dissemination and sale transactions all in one place. So the correct answer is your E, advertising. Question number 189. Which of the following is importance of e-marketing? तो यहाँ पर sell, service, sizzle both are the all of them are the importance of e-marketing. 190 question. Dash is a low cost communication tool that can be easily tested, refined and roll out. तो ये क्या है आपका opt-in email. क्वेश्चन नंबर 191. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई मार्केटिंग टूल? इसमें से ई मार्केटिंग टूल कौन सा नहीं है आपका? सिनेमा. 192 क्वेश्चन. अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज मोर देन वंस टू बोरो मनी और बाय गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज योर. ये कौन से होते हैं आपके क्रेडिट कार्ड जिनको यू कैन यूज मोर देन वंस टू बोरो मनी और टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट. 193 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क इन इंटरनेट बिजनेस ट्रांजेक्शन? यहाँ पर देखो नॉट आ रिस्क, इसमें से कौन सा रिस्क नहीं होता? तो ये एवर शॉर्टिंग, सोपिंग, अनऑथराइजेशन सारे क्या है, ये रिस्की फैक्टर्स हैं आपके. ओनली द एंक्रिप्शन ये क्या है आपका, एक सिक्योर्ड होता है आपका, जिसके थ्रू यू कैन ऑप्टिमाइज योर रिस्क. A security tool to verify the authenticity of a message and claim identity to the sender and to verify द मैसेज इंटीग्रिटी इज योर डिजिटल सिग्नेचर. इसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, आपको मैसेज को ऑथेंटिसिटी होती है उसकी ऑथेंटिसिटी को आप वेरीफाई कर सकते हो और आपके जो आइडेंटिटी ऑफ सेंडर की आइडेंटिटी को भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो अपने. An electronic file that uniquely identifies individuals and websites on the internet and enables secure or confidential communication. तो ये क्या होता है, थ्रू द डिजिटल सिग्नेचर. क्वेश्चन नंबर 196. डैश इज ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट. तो इसमें से आइडेंटिटी थेफ्ट कौन सा है, इसमें से आपका फिशिंग. इसके अंदर क्या करते हो आप, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हो थ्रू फिशिंग. इसी के इसमें तो क्या करते हो आप, ईमेल के थ्रू करते हो. एक इसी से रिलेटेड वर्ड होता है आपका फार्मिंग. इसके अंदर क्या करते हो आप, एक डुप्लीकेट वेबसाइट के थ्रू आप क्या करते हो, बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्वायर करते हो. क्वेश्चन नंबर 197. डैश इज नॉट एन ई पेमेंट मीडिया. इसमें से ई पेमेंट मीडिया कौन सा नहीं है, क्रेडिट, डेबिट, इलेक्ट्रॉनिक शेयर, ऑल ऑफ देम आर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ई पेमेंट मीडिया है एक्सेप्ट योर वॉलेट. द फाइनेंशियल एक्सचेंज दैट टेक्स प्लेस ऑनलाइन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इज नोन एज. द फाइनेंशियल एक्सचेंज क्या होगा, मनी से रिलेटेड. तो इसमें क्या है आपका ई पेमेंट सिस्टम. EFT means EFT stand for electronic fund transfer. A computer-based system that facilitates the transfer of money or the purchasing, processing of financial transactions between two financial institutions the same day overnight is your ETB. So here's your up to 200 question we have solved. If you find this video helpful, then don't forget to like, subscribe and comment on my channel. Thank you guys. Thank you so much.